আজকে আমার এনএসইউআই ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট বিনোদ ঝাকরজি এবং আমাদের সকলের প্রিয় নেতা কানহাইয়া কুমারজি, আমাদের এনএসইউআই এর অল ইন্ডিয়া ইনচার্জ, উনিও আজকে উপস্থিত ছিলেন। উনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি কখনো বাংলায় প্রচারে আসিনি, প্রথমবার এলাম এবং সেটা তোমারটাতেই, তোমার এতবার বলাতে, কারণ কিন্তু এসে আমার খুব ভালো লেগেছে। তো ওনার যে এসে ভালো লেগেছে, উনি যে ইউথদের সাথে কানেক্ট করলেন, যেভাবে বললেন বাঙালির জন্য, বাংলার জন্য যেভাবে জাতীয় কংগ্রেস লড়ছে, এবং অবশ্যই আমরা সবাইকে নিয়ে চলার একটা সৌভ্রাতৃত্বের যে বন্ধন, সেটাকে আমরা যতটা জোরদার করব, ততই আগামী দিনে বালি, পশ্চিমবঙ্গ এবং আমাদের দেশ ততই বেশি স্ট্রং হবে, তার উন্নতির রাস্তা খুলে যাবে। তো সেই জন্যেই আমিও লড়ছি, তাই জন্যেই আমার যারা নেতা তারাও এসছেন, আমার যারা শুভানুধ্যায়ী তারাও এসছেন, প্রসেনজিৎ বাবু এসেছিলেন। তো তাদের সকলকে নিয়ে আজকে একটা অত্যন্ত সাকসেসফুল মিটিং বেলুর বাজারে। আমি জানি না লাস্ট কবে কংগ্রেসের এত বড় একটা মিটিং হয়েছে, এত বড় মাপের। তো সবার প্রচেষ্টা এটার মধ্যে জড়িত। আমাদের যিনি ব্লক কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট আছেন দেবপ্রসাদ মুখার্জি, আমাদের যিনি এই জেলার প্রেসিডেন্ট আছেন পার্থসারথী ভৌমিক, তাদের প্রত্যেকের, এবং ছাত্র পরিষদের যারা ছাত্র পরিষদের নেতা, ছাত্র নেতা, তাদের সবচেয়ে বেশি এই যোগদান ছিল, যার জন্যেই এতটা সফল একটা সভা হয়েছে। তো তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। এবং আমি আশা করছি আজকের পর অবশ্যই বালিতে আমার যেটা কনফিডেন্স হোক বা এনার্জি হোক, সেটা আরও 100 টাইমস বেড়ে গেছে, এবং সেটাকে আমরা কাজে লাগিয়ে বালি জয় করছি। ছাত্র জীবন আমাদের ছাত্র নেতা, দিল্লির ছাত্র নেতা, পুরো ভারতবর্ষের ছাত্র নেতা কানহাইয়া কুমার এসেছেন। তাকে সবাই মিলে আরেকবার সঙ্গে চলে বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। কানহাইয়া কুমার ওয়েলকাম, কানহাইয়া কুমার ওয়েলকাম। জয় নীরজ উপাধ্যায়, শাহিদ কুরেশি, আমার সিনিয়র লিডারশিপ পিছনে বসার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের আসার জন্য। দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখার অবকাশ নেই, আপনারা জানেন, আপনারা বসে আছেন একজন বিশেষ বক্তার জন্য। কিন্তু এই খোলা মাঠে আমার মনে হচ্ছে কিছুর একটা অভাব আছে। তো আমি আপনাদের সবার খুব ফেভারিট দুটো শব্দ বলবো, আপনারা আমার পরে বলবেন। এর থেকে ফেভারিট শব্দ আজকের দিনে, আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে হতে পারে না। তো আমার সঙ্গে বা আমার পরে বলবেন খুব ফেভারিট শব্দ আপনার আমার, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। অনেক অনেক ধন্যবাদ। শব্দ ব্রহ্ম, জানেন তো, এই যে এক্ষুনি কয়েকজন পিছনে যারা ছিলেন তারা দেখতে পেয়েছেন, কিছু হনুমানের দল শব্দ দিয়ে আমাদের চেষ্টা করছিল প্রভোগ করার। ধন্যবাদ, আপনারা কেউ প্রভোগ করেননি, আপনারা কংগ্রেসের মর্যাদা বজায় রেখেছেন। বন্ধুগণ, অনেকক্ষণ ধরে আমি নন্দাদার, দেবপ্রসাদার বক্তব্য শুনেছি, অসাধারণ বক্তা। আমার আপনাদের কাছে দুটো খুব ছোট্ট আবেদন আছে। 2011 সালে যে বাড়ির মেয়েটি বা সদ্য বিবাহিতা বা সদ্য মা হয়েছেন, মা, সেই মা 3 বছরের 2 বছরের বাচ্চাকে কোলে থেকে নামিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রান্নাঘরের কাজ আধসারা করে হাত মুছে দৌড়ে গিয়েছিলেন। যারা যারা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন বসিয়ে বলুন, যে যার আসন নিন। কানহাইয়া কুমারজি আর 5 মিনিটের মধ্যে আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হবে। 5 মিনিট আপনারা যে যার আসন নিন। আমরা উত্তেজিত, একটু উৎসাহিত বটে। ওনার মতো বক্তার, ওনার মতো নেতার কথা শুনবো। পুরো দিল্লি শহরকে হেলিয়ে দিয়েছিলেন যাকে বলতে বোঝায়। কানহাইয়া কুমার 5 মিনিটের মধ্যে এখানে আসবেন। তো আমি যেটা বলছিলাম, 2011 সালে সকালবেলা বা একটু বেলার দিকে রান্না আধসারা রেখে যে মহিলা দৌড়ে গিয়েছিলেন ভোটটা দিয়ে আসি পরিবর্তনের আশায়, যে বোতাম টিপেছিলেন, বোতাম টিপতে টিপতে ভেবেছিলেন আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাত। বাঙালির মানুষের মননে, চিন্তায় এর থেকে বড় চিন্তা আর বোধহয় কিছু নেই।
আজ থেকে প্রায় 250 বছর আগে রায়গুণাগড় ভরতচন্দ্র লিখেছেন, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। সুমন চট্টোপাধ্যায়, কবি সুমন, ছেলে মেয়েগুলো যেন থাকে দুধে ভাতে। আমাদের এইটুকুই তো চাহিদা, যে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যেন থাকে দুধে ভাতে। এটাই তো চেয়েছি, আর কি চাইতে পারি সরকারের থেকে? আর কি দিতে পারে সরকার? তো সে 2011 সালে সেই মহিলা তার 3 বছরের বাচ্চাকে ডেকে যখন ভোট দিতে গিয়েছিলেন আশা করে যে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে, তার সেই ছেলেটি বা মেয়েটি 1 বছর পরে উচ্চ মাধ্যমিক দেবে, কি ভবিষ্যৎ আছে বাংলায় তার? 2014 সালে যে সে ভদ্রলোক তার সন্তান সন্ততির কথা ভেবে আরেকটা ফুলে আঙুল ঠেকিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন সবার বিকাশ হবে, তার ছেলেটাও 15 বছর বয়স হতে চললো, 5 বছর পরে চাকরি পেতে হবে, তার কি ভবিষ্যৎ? তারপরেও বারবার আমাদের এই মিথ্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, বারবার আমাদেরকে এবার বোঝানো হয়েছে যে এবারে হলো না, আগের বারে হবে। কতবার ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আপনারা মনে করে দেখুন, 2 महीना दीजिए, 50 दिन दीजिए, 1 महीना दीजिए। এখন কি বলেন? 2047 সালে দেবো, এখন ভোট দিতে থাকো 2047 সালে দেবো। না আপনি থাকবেন না আমি থাকবো, জানি যিনি বলছেন তিনি থাকবেন, 2047 সালে দেবেন। জিজ্ঞেস করুন আপনার এখানকার এমএলএ কে, যিনি পলায়নকারী এমএলএ অবশ্য, পালিয়ে গেছেন, যে আমাদের বালির এই রাস্তাঘাটের এই অবস্থা কেন, জঞ্জালকে পরিষ্কার করবে? সামনের বারে করব, রাস্তাঘাট হচ্ছে, হবে, স্কুল কলেজ আচ্ছা করছি তো, তাহলে করলেন কি? আপনাকে যে সাধারণ মানুষ শয়ে শয়ে আঙুল টিপে ভোট দিয়ে গেল, আপনারা করলেন কি? এখনো করছেন, এখনো করবেন। আর যদি না পারেন তাহলে এই চেয়ারটা অধিকার করে বসে থাকার রাইট আপনাকে কে দেবে? বারবার ধরে আমরা বলি যে বাঙালি, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নতুন গন্ধ পছন্দ করে, নতুন বই, নতুন জামা, নতুন শাড়ির ভাঁজ। পশ্চিমবঙ্গে 29 এপ্রিল, বালিতে 29 এপ্রিল সেই নতুন কাগজ খোলার, নতুন বই খোলার আবেদন আপনাদের কাছে থাকবে। অনেক তো দেখলেন 2 ফুলের লড়াই, অনেক তো দেখলেন 2 বড় না মই বড় লড়াই। কাদেরকে দাঁড় করিয়েছে দেখেছেন আপনারা? বালির সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ক্যান্ডিডেট। কি অপশন আছে আপনাদের হাতে? কটা করে ক্রিমিনাল কেস আছে জানেন? রোজগারের হিসেব রাখেন? বালির সাধারণ মানুষ এই ক্যান্ডিডেটকে চুজ করবেন কেন? করতে বাধ্য হবেন। কেন বাধ্য হবেন? মোড়ে মোড়ে সবুজ রঙের নানা চেয়ার নিয়ে সবুজ দাদারা বসে থাকেন, নইলে ভয় দেখাবেন, বাড়িতে চলে আসবেন, চাকরি খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। বালির মানুষ এটা মেনে নেবেন? नासिर हुसैन साहब पधारे हैं, मैं उनका बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी श्री कन्हैया कुमार जी पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान तमाम हमारे अतिथियों का बहुत अभिनंदन स्वागत। और हमारी बहन छात्र परिषद की अध्यक्ष प्रियंका चौधरी जी, आज पूरा दिन हम इनके साथ कैंपेन में हैं। जिस जोश के साथ, जिस ताकत के साथ ये लगी हुई हैं, लोगों से इनकी जो बातचीत है, मिलनसार, जो आज हमने पूरा दिन में देखा कि छोटे छोटे बच्चों से लेके सबसे ज़्यादा अगर उत्साहित कोई वर्ग था तो वो महिला वर्ग था। तो मैं आपको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं। बंगाल वो जगह है जिसने इस देश को दिशा दी, संस्कृति दी और साथ के साथ क्रांति दी। जितने भी आज हम लोग बड़े नाम सुनते हैं देश की आज़ादी में, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस साहब से हो, चाहे वो हमारे
पार्टी के बड़े नेताओं से हो, टैगोर साहब को हम लोग याद करते हैं, तो हम लोग यही देखते हैं कि बंगाल के अंदर ऊर्जा बहुत है, क्रांति बहुत है, लेकिन एक लंबे समय से इस क्रांति को जो है दबाया गया, रोका गया। आज के नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आज स्थिति ऐसी है कि शिक्षा को महंगी कर दिया गया है। महंगी शिक्षा के बावजूद भी जो नौजवान पढ़ पा रहे हैं वो डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहे हैं, नौकरियों के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। जब हम लोग देखते हैं कि राजस्थान के अंदर, बाकी राज्यों के अंदर, बंगाल से एक बड़ी संख्या के अंदर नौजवान आके वहां रोजगार ढूंढते हैं, और जब हम पुराने बंगाल को देखते हैं कि वो बंगाल जिसने इस देश को आजादी के अंदर सबसे बड़ा योगदान दिया, आज वही बंगाल जो है अपने नौजवानों को नौकरी तक देने में सक्षम नहीं है। छोटे व्यापारी हो, चाहे कामगार लोग हों, सब बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं। पाली विधानसभा के सभी आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मजदूर भाइयों, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकानदारी करने वाले, नौकरी करने वाले, इस इलाके के आप सभी बासिंदों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपको आदाब करता हूं। मैं ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, बस एक तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बेलूर मठ की इस पावन भूमि पर पाली में आने का मौका मिला है, तो इस पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ। और दूसरा, आमी बांग्ला बुझते पारी किंतु बोलते पारी ना, तो हमको आप हिंदी में बात करने की इजाज़त दीजिए, लेकिन ये गारंटी है कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, आपसे ज़बरदस्ती हिंदी नहीं बुलवाएंगे भाजपा की तरह, ये गारंटी हम आपको दे रहे हैं। जैसे हमारी मीटिंग की शुरुआत में, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, जय हिंद जय भारत बोलते हैं। तो हमको जो बोलना है बोलेंगे, हमको जो भाषा बोलनी है बोलेंगे, हमको जो पहनना है पहनेंगे, हमको जो खाना है खाएंगे, लेकिन हम अपना विचार आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपेंगे। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है। अब मुझे हिंदी बोलनी आती है, इसलिए मैं आपसे हिंदी में बोलने में इजाज़त चाहता हूँ। और सबसे ज़रूरी और पहली बात ये कि हम अपनी साथी, हमारी योद्धा, हमारी लड़ाका, छात्र परिषद की राज्य अध्यक्ष, स्टेट प्रेसिडेंट प्रियंका का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। क्योंकि प्रियंका से बात हुई तो प्रियंका ने कहा, भैया हम बड़ी हिम्मत से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा की तरफ से देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, टीएमसी की तरफ से जो है प्रदेश की मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए आ रही है, तो हमारी तरफ से भी जो है हमारे दल के नेता लोगों को आना चाहिए। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी का, राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नासिर हुसैन जी का, और जेएनयू के हमारे पुराने सीनियर और यहीं दमदम इलाके में रहते हैं प्रसेनजीत का, हमारे प्रखंड अध्यक्ष मुखर्जी जी का। आप सबका हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सब उस नौजवान कार्यकर्ता के साथ खड़े होने के लिए पाली विधानसभा में आए हैं जो बड़ी हिम्मत से यह चुनाव लड़ रही है। और हम चुनाव अपने दिमाग में कोई परिणाम लेकर के नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव का परिणाम क्या होगा वो 4 तारीख को पता होगा। मुझे नहीं पता, ज्ञानेश जी को पता है, टीएमसी को पता है, अमित शाह को पता है, हमको नहीं पता है। हमको ये मालूम है कि लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त है नागरिक होना, नागरिक का बोध होना। और नागरिक का बोध होना अगर मर जाए तो लोकतंत्र मर जाता है। और आज
इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लोगों को नागरिक बोध होने से, उनके भीतर जो नागरिक होने का एहसास है, उसको लगातार मारने की कोशिश की जा रही है। आप पहली बात ये सोच करके बताइए कि देश के गृह मंत्री को कैसे पता है? अभी पहला फेज का चुनाव कंप्लीट भी नहीं हुआ था और वो कह रहे हैं कि हम 200 सीट जीत रहे हैं। ये तो तभी हो सकता है ना कि ज्ञानेश ने उनको अलग से कोई ज्ञान दिया हो, रात को 12 बजे कान में आकर के बताया हो कि आप कितना सीट जीत रहे हैं। और दूसरा कि चुनाव बंगाल का हो रहा है तो बंगाल के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। मैं गारंटी करता हूं, आप सब यहां बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, जहां कहीं भी मीटिंग हो रही है और जो लंबा लंबा भाषण छोड़ रहे हैं किसी भी पार्टी की तरफ से, उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहिए कि बंगाल में कितने स्कूल हैं, बंगाल में कितने अस्पताल हैं, बंगाल में कितनी नई फैक्ट्रियां खुली हैं, बंगाल में कितने लोगों को रोजगार मिला है, बंगाल से हर साल कितने लोग पलायन करते हैं। ये पूछना चाहिए उनसे सवाल। मैं जब आ रहा था यहाँ तो रास्ते में सिस्टर नविता के नाम से पुल बना हुआ है। कितनी शानदार बात है, कितना शानदार इतिहास है। मतलब हावड़ा ब्रिज दुनिया भर में एक मिसाल है, लेकिन आज स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि बांग्ला बोलने वाले लोगों को पूरे देश में घुसपैठिया कह करके यही बीजेपी के कार्यकर्ता पीट रहे हैं और यहां आकर के बंगालियों से वोट मांग रहे हैं। आप अखबार उठा करके देख लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं चुनौती देता हूं कि मेरे ऊपर मुकदमा कर दीजिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर कर्नाटक में हमारी भी सरकार है, बेंगलोर में अगर किसी बांग्ला बोलने वाले को पीटा जाता है, जांच में पता चलता है कि वो भाजपा के समर्थक हैं और वो सिर्फ और सिर्फ बांग्ला बोलने वालों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते हैं। आज राहुल जी कह रहे थे कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा किए। हम कहते हैं कि हम लोग भारत जोड़ो यात्रा किए, वो भारत तोड़ो यात्रा भी कर रहे हैं। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो 2014 से ही भारत बेचो यात्रा पर निकले हुए हैं। मैं सुबह सुबह प्रधानमंत्री का फोटो देखा, कैमरा लेकर के कैमरामैन के बीच नाव में बैठे हुए थे। हमको लगा ये आदमी जो है ना, इस कैमरे का इस्तेमाल दूरबीन की तरह करेगा, जमीन सब नाप करके देखेगा और सोचेगा कि ये वाला नदी किसको देना है, अंबानी को देना है कि अदानी को देना है। एक ही काम है, बेचना। नारा बहुत बड़ा बड़ा देश के नाम पर। आप प्रोफाइल निकाल करके देख लीजिए, कह रहे हैं कि बंगाल में बंगाली बोलने वाला, बंगाली स्कूल में पढ़ने वाला मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जो है बंगाल की संपत्ति देगा तो अदानी को ही ना। मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, सवाल है कि बंगाल के खेत खलिहान, स्कूल, कॉलेज, ट्रेन, बस, मेट्रो, एयरपोर्ट, पोर्ट, वो किसका होगा? वो तो एक ही का होगा ना। पूरे देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, ये कलकत्ता एयरपोर्ट बचा हुआ है, सरकार आने दीजिए, वो भी अदानी के पास चला जाएगा जैसे दिल्ली का एयरपोर्ट चला गया। ये असली लड़ाई है। और आप देखिए कि ये सवाल गायब कर दिए गए हैं। बेरोजगारी क्यों है, महिला सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? अभी लंबा लंबा छोड़ रहे थे दिल्ली में, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला करके महिलाओं को न्याय दिला रहे थे। मैं पूरे रास्ते में भाजपा का पोस्टर देखते आया हूं, एक भी महिला का फोटो भाजपा के किसी भी पोस्टर पर नहीं है। अरे कोई नहीं मिली तो लॉकेट चटर्जी का ही फोटो लगा देते हैं। वो क्या नाम उसका, संमित्रा पॉल, उसी का फोटो लगा देते हैं। अगर उसका भी फोटो नहीं लगा रहा है तो स्मृति ईरानी इतनी मेहनत कर रही है, उसी का फोटो लगा देते हैं। एक महिला का फोटो नहीं है इनके किसी भी पोस्टर पर। अरे ये कैसा महिला सम्मान है कि महिला के नाम पर भी हम ही को वोट दे दीजिए, हर किसी के नाम पे आप हम ही को वोट दे दीजिए। हम कहते हैं इस साजिश को आपको समझना पड़ेगा।
और अमूमन हम चुनाव में बंगाल नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको बहुत प्रेम है यहाँ के लोगों से, यहाँ के खान पान से, और हमारी तो भाषा मैथिली है। मैथिली अगर बोलें तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ बंगला ही बोल रहे हैं। आप भी छे करते हैं, हम लोग भी छे करते हैं। आप भी खूब मछली खाते हैं, हम लोग भी बहुत मछली खाते हैं। मजेदार बात यह है कि आजकल तो अनुराग ठाकुर भी यहाँ करके मछली खा रहे हैं। ये तो आपकी ताकत है। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब हम लोग सुना करते थे, एक फ्रेज है ना कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। यही सोच करके हमारी पार्टी ने भी ये तय किया है कि हम बंगाल में विकल्प देने का कोशिश करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमारी कोशिश का हौसला अफजाई करते हैं नहीं करते हैं। हम तो लोकतंत्र में नागरिकों के बोध, उनका विवेक, मताधिकार, इस पर भरोसा करने वाले लोग हैं। और हमारी नौजवान जुझारू लड़ाका छात्र परिषद की अध्यक्ष यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। हम इसका हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। बाली के लोगों को 20 साल बाद ईवीएम मशीन पर पंजा दिखेगा, 20 साल बाद। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे पास बंगाल को देने के लिए एक विकल्प है। रोजी रोजगार, पलायन को रोकने की व्यवस्था, कल कारखाने, स्कूल, कॉलेज, विकास की गति में बंगालियों की भागीदारी से बंगालियों के लिए विकास हो। प्रधानमंत्री की तरह नहीं, टू दी कैमरा, फॉर दी कैमरा, बाय दी कैमरा नहीं, टू दी बंगाली, बाय द बंगाली, फॉर द बंगाली। ये विकल्प कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे नौजवान प्रत्याशी का हौसला अफजाई जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।